हरिओम। आप सभी का आज के नए सत्र राजयोग विद योगी राज में स्वागत व अभिनंदन है। आज से प्रत्येक रविवार हम योग सूत्र व राजयोग ज्ञान को जानेंगे व अभ्यास करेंगे। आज के सत्र को लेने के लिए आदरणीय गुरुदेव उपस्थित है हमारे साथ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे लाइव आके सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। Namaste, Pranam. Welcome to all of you for today's session. Today we say it is not Sundays with Yogi Raj, but Raj Yog with Yogi Raj. We specified the name Raj Yog. So from today onwards, every Sunday, we name this program as Raj Yog with Yogi Raj. So it is important to understand first why I selected this topic for the Sundays. सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम ये जान सकें कि रविवार के दिन मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया. The first thing is that there was lot many there were many queries. They want to know what the reality of yoga, what the actual yoga is, how yoga is derived from the ancient time to modern time. Also, many people have a varieties of problem in the modern life, and yes, Raja Yoga always has solutions. That's why it is named as Raja Yoga. I will explain you how come the Raja Yoga can sort out all your problems of day-to-day life, how technically it is designed to make humankind uplifted, how technically it is formulated to resolve our all obstacles of meditation, of our enlightenment. This is not only a spiritual journey, but it is also for our healthy life, well being, and all the aspects of health. It could be like physical health, mental health, social health, emotional health, and of course, the spiritual health. That's why it is really important to understand the Raja Yoga. The second important thing is that many people has a queries to understand the tradition of India, the Hinduism, the mythology in a proper scientific manner. And those who really wish to understand our culture, the Indology, the Indian science in great detail with all its secrets, then of course we need to go through the Raj Yoga. So Raj Yoga contains all those secrets of life. It is also known as the royal path. Yes, Raja means the royal, the king. So Raja Yoga is the royal path of yoga. Literally, it means the royal path of yoga.
We all are the kings of ourselves. When we say king, it doesn't mean the king of a kingdom. And yes, if you feel your body is a kingdom, then yes, you are the king. You are the king of the body. This is the kingdom of yourself. There are varieties of cells and tissues. Live cells and tissues lies in your body. Not the cells and tissues only. There are monads. Your mind, their mind is also a world. There are two types of world, a physical world and mental world is there, and you are the king of these kingdoms. So when I say Raja Yoga, of course, it makes sense. It makes sense because you are the king. You are the king of two worlds, the physical plane as well as the mental plane. And Raja Yoga want to make you the king of the spiritual plane, the astral plane also, the king of these three places. Bhur Bhuva Swa. राजयोग आज का विषय मैंने कई कारणों से चुना है। कई प्रश्न आते थे योग के वास्तविक चरित्र को समझने के लिए। कई बार प्रश्न आते थे भारतीय आध्यात्मिक इतिहास और रहस्यों को समझने के लिए। कई बार प्रश्न आते थे कि हम अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे करें। और ये सारी जितने भी प्रश्न आप करते थे वो एक ही ओर इशारा करते थे, वो था राजयोग। राजयोग आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान है। जितने भी प्रकार के समस्याएं होते हैं, चाहे वो सांसारिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। इसलिए आज राजयोग को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राजयोग इस तरह से तकनीकी रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको फॉर्मुलेट किया गया है ताकि आप जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझ सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें और जीवन को एक रॉयल पाथ, एक राजसी स्वरूप दे सकें। राजसी स्वरूप का अर्थ है कि आप जीवन में उन्नत हो सके, जीवन में आप जितना विकसित, जितना परिष्कृत हो सकते हैं उतना हो सके, उसके लिए आपको युक्तियां मिले। तो लेट्स स्टार्ट द राजा योगा। बिफोर वी स्टार्ट द राजा योगा, ऑल ऑफ यू प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। सभी लोग किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जेंटली क्लोज योर आईज। With the closed eyes, watch your whole body. बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। Make your whole body steady and calm without movement. पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। अपने शरीर को इस प्रकार से देखिए मानो आप दर्पण देख रहे हो, स्वयं को देख रहे हो। Watch your whole body as you are watching a mirror. Watch yourself in a mirror. एक दृष्टा की भांति शरीर को चारों तरफ से देखिए।
Just like a drashta, you watch your whole body. Now watch your breath. अब अपने श्वास के प्रति सजग बनेंगे. Watch your breath. The rhythm of the breath and the touch of the breath. श्वास की गति और स्पर्श के प्रति सजग बनिए. Watch when you inhale, your lungs expands, your abdomen expands. When you exhale, your lungs and abdomen contracts. Synchronize this expansion and contraction with your breath. महसूस करें जब आप श्वास लेते हैं, आपके फेफड़े और पेट फैलता है. श्वास छोड़ते ही यह सिकुड़ता है. इस फैलाव और सिकुड़न को श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव कीजिए. शरीर और श्वास के पश्चात हम लोग अब अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनेंगे. After body and breath, we will become aware of our senses. Now sense any smell all around. Feel. There is always some smell all around. Feel it. आसपास किसी गंध को महसूस कीजिए. Now become aware of your tongue and feel some taste in your mouth. अब अपनी जिह्वा के प्रति सजग बनिए और मुख में किसी भी प्रकार के स्वाद को महसूस कीजिए. अब बंद आंखों के पीछे किसी भी प्रकाश या रंग के प्रति सजग बनिए. Now become aware of the sense of vision. With the closed eyes, watch any color or light if you can feel in the eyebrow center. Any color or light behind your eyes. Now bring your awareness to your skin and feel the touch. You can feel any touch, the touch of your clothes to your body, the touch of breath to your nostrils, the touch of tongue to your mouth,
the touch of eyelid to your eye, any touch. अब स्पर्श इंद्रिय के प्रति सजग बनेंगे और जो भी स्पर्श शरीर में हो रहा है उसके प्रति सजग बनेंगे। और पांचवी इंद्रिय श्रवण इंद्रिय, आसपास की आवाज के प्रति सजग बनिए और दूर दूर से आने वाली आवाजों को भी सुनिए। अपनी चेतना को एक आवाज से दूसरी आवाज में स्थानांतरित कीजिए और भिन्न भिन्न आवाजों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को सुनिए। Now the fifth sense is sense of listening. Listen the sounds coming from outside. Move your mind from one sound to another sound. Try to listen the sound coming from very far, the farthest sound. Make your mind as a radar which can listen very subtle sound also. Now leave the indriyas, senses, and become aware of your mind. अब इंद्रियों को छोड़ दीजिए, मन पे आइए। देखिए किस प्रकार के विचार और भावनाएं आपके भीतर में हो रहा है। Now watch what type of thoughts and emotions are going on inside you. Become an observer. Watch the thoughts and the emotions rising inside you. Remember, just be a witness. Don't involve in your thoughts and emotions. Just be a witness. अब आप अपने मन के प्रति सजग बनिए और मन में उठने वाले समस्त विचारों और भावनाओं के प्रति सजग बनिए। आपको उसमें बदलाव नहीं करना है, न उसमें रमना है, बस एक साक्षी की भांति उसे देखिए, महसूस कीजिए। क्या है मन के भीतर? क्या आप इस मन के बियॉन्ड जा सकते हैं? What is there in your mind? Can you go beyond the mind? We will learn all these in the Raja Yoga. Can we go beyond this? Can we feel more subtle than this? We cross the four levels, the body, the breath, the senses, the mind. Is there any fifth stage which is more subtle than the mind? हम लोगों ने चार चरण को, चार आयामों को स्पर्श किया। शरीर, श्वास, इंद्रिय और मन। क्या इससे भी गहरा, इससे भी सूक्ष्म कोई स्तर है? क्या इससे भी पार और सूक्ष्मता में आप जा सकते हैं? राजयोग में हम इसी पर मनन करेंगे और निदिध्यासन करेंगे। हम लोग अपनी चेतना को
भ्रूमध्य पे लाएंगे. नाउ वी bring our awareness to your eyebrow center and visualize there a divine flame. वहां पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए. We will chant 3 times Om and शांति पाठ together. हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे. ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लें. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Shanti Shanti शांति. दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Now gently open your eyes. Once again, welcome to you all for today's session, Raj Yog with Yogi Raj. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राजयोग जैसे विषय को क्यों चुना गया और यह किस प्रकार से हमारी समस्त समस्याओं को समाधान एवं जीवन को ऊर्ध्व और परिष्कृत और सही दिशा में ले जा सकता है. मैं ये समझा रहा था कि ये एक रॉयल पाथ है और इस राजयोग में आप जीवन के उच्चतम शिखर को स्पर्श कर पाते हैं. We are discussing about why we selected the Raja Yoga. I have given some reasons, as this is the royal path where we can touch the highest peak of humanity, the evolution of humankind. So that's why this Raj Yoga is such important part. Before we go further, the sutras of Raja Yoga, the aphorisms of Patanjali, let us discuss why we study, what we study, and how we study. These 3 very important questions. Whenever you study something, whenever you contemplate something, always raise these 3 questions. Why? What? And how? These 3 questions are very important, which make any subject important for you. It makes a priority inside you. Why you study this? आप क्यों पढ़ोगे राजयोग, क्यों जानोगे, क्यों मनन करोगे राजयोग? राजयोग इसलिए आप पढ़ोगे, इसलिए आप मनन करोगे कि ये जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता है, जीवन के उन उद्देश्य को पूर्ण करता है जिसके लिए आप पैदा लिए हो. ये हुआ प्रश्न कि हम इसको क्यों पढ़ें. जब आप सभी ओर से निराश हो जाते हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो,
जब आपको जीवन में आपकी समस्याओं का हल नहीं मिल पाता है, जब आपने हर प्रकार हर रास्तों को देख लिया होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि काश इस अंधेरे रास्ते में, अंधेरे जीवन में कोई टॉर्च बनकर सामने आता और पथ प्रदर्शक होता, और यही काम राजयोग करता है। Rajयोग, first we understand why we studied. In our darkness of life, when we cannot resolve our problems, when we sink into the life in such a manner, we feel always there is no windows, no doors, there is a viscosity of the problems. We feel the network of Maya is somehow all around of ourselves. Then we get a royal path of Raja Yoga, which release all those negative energies, which release all the sense of ignorance, avidya, and we get a bright path of enlightenment. That's why we should contemplate, we should learn Raja Yoga. What is Raja Yoga? Now next question is what? क्या है राजयोग? क्यों के बाद प्रश्न उठता है कि राजयोग क्या है? So first the question is क्यों? The first is the question is why? Because we are somewhere where there is no solutions. We have varieties of problems in all over of our life, but there is no formula of solving those difficult quadratic equations of mathematics. Yes, life is like a quadratic equation of mathematics. I will explain you how. And what is the formula? And I'll give you the formula a plus b whole square. This is the formula. Yes, what Patanjali says. There are the mathematical solutions of all those problems developed by the quadratic equation of life. जीवन बहुत ही गणितीय समस्याओं से भरा है. एक एक करके हम फॉर्मूले बनाएंगे, सीखेंगे. हमारे महान योगियों ने जो समाधान बताए हैं उससे हम हल करेंगे. So it is just not your philosophy class, it is a class of mathematics. It is just not a yoga class, it is a class of science. It is just not the theoretical class, it is a practical class. Yoga is a practical class. Now I come to Raj Yoga. What is Raja Yoga? Raj Yoga क्या है? तो सबसे पहले योग समझते हैं, योग क्या है, उसके बाद समझेंगे राज योग क्या है. तो पहले योग क्या है? योग की परिभाषा जो सबसे सर्वमान्य परिभाषा है, युजिर योगे युज समाधौ. युजिर योगे. Let us start with this definition of yoga. युजिर योगे. What is योग? युजिर योग का अर्थ लगभग सभी लोग जानते हैं. जो हिंदी भाषी हैं वो योग को बहुत अच्छे से समझते हैं. योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना. एक योग एक बराबर दो, दो योग दो बराबर चार. जब कोई चीज को जोड़ते हैं, जब कोई चीज मिलता है आपस में,
तो उसको योग कहते हैं। कुल योग, टोटल समेशन, टोटल सम निकालते हैं तो कुल योग लिखते हैं नीचे, कुल योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब ये आगे समझेंगे कि राजयोग के महर्षियों ने क्या जोड़ने को कहा है। क्या शरीर और आत्मा, या आत्मा या परमात्मा? क्या योग किसको जोड़ना है? यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू डी है, तो ए प्लस बी प्लस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और डी क्या है? The first meaning of yoga is to add, to mix with, to accumulate. The, the meaning behind the yoga is when you add something, when you mix something, when you intermingle something. That is what the first meaning is. And in Hindi language, we very often use this in our day to day life as when we add something mathematically, also in a day to day life when we mix something. So later on, I will explain what is we going to mix. Is it the body and mind, or body and Atman, or mind or Atman, or Atman to Paramatman? That is another question. We'll discuss whole coming Sundays about what we are going to add actually, what we are going to mix actually. That is very interesting question. And chapter by chapter, sutra by sutra, I will explain you what we are going to add. So first meaning is to add, to mix up with. अच्छा, दूसरा मतलब क्या है? What is the second meaning? पहला था युजर योगे, दूसरा युज समाधौ. The word yoga is coming from the word युज. युज शब्द है. युज का अर्थ है युजर, जोड़ना, योग करना. युज शब्द से ही जोड़ना बना है. और युज शब्द का दूसरा अर्थ है समाधौ. युजर योगे युज समाधौ. The second meaning is samadhi. Now this is really very technical term, samadhi. We take a proper time to discussion on samadhi because in Raja Yoga, samadhi is explained in great detail. We have many classes on samadhi because it is a core meaning of yoga. पहला जो अर्थ था वो तो सभी शास्त्रों ने लिया. योग को जोड़ना, आत्मा परमात्मा का मिलना, मिलना जोड़ना, ये तो कॉमन शब्द है. लेमन लैंग्वेजेस सभी जानते हैं, इट्स कॉमन. लेकिन राजयोग ये इस बात पे तैयार नहीं है. ये तो साधारण लोगों की बात है, ये तो कॉमन लोग कहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग इसको कहते हैं. ठीक है, जोड़ना मिलना, योग का अर्थ. लेकिन राजयोग का सही अर्थ क्या है? योग का सही अर्थ राजयोग क्या बताते हैं, महर्षि क्या बताते हैं? महर्षि बताते हैं इसका अर्थ है समाधि. और ये समाधि शब्द समझने जैसा है, गंभीर शब्द है. इसको जितना समझा जाए उतना कम है. यकीन करो, जीवन भर भी समझते रह जाओगे तब भी बचा रह जाएगा. ये इतना गहरा है. जीवन भर इस पे लिखी किताबें पढ़ते रह जाओ, जीवन भर इस पे मनन करते रह जाओ, इसके अनुभव करते रह जाओ, फिर भी कम पड़ जाएगा. समाधि सागर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है. समाधि इज अ वेरी डीप वर्ड, very deep word, infinite. There is no, we cannot understand properly any time in our life. We cannot completely understand the samadhi. It is such a big term, such a big term. Samadhi cannot translate it any word in English. There is no English of samadhi. There is no English term in any language of whole world. There is no translation of samadhi. Samadhi cannot be translated. Such a deep, such a mysterious, such a sacred term is this. And whole Raja Yoga is somehow based on samadhi.
In every forums, every chapters of Raja Yoga, they talk on Samadhi. Maharshi continuously talking on the Samadhi. Patanjali whole his Yoga Sutra is based on Samadhi. What does it mean? I will explain coming Sundays, every Sundays I will explain Samadhi in great detail. We cannot understand in 1 2 days or Sundays or in 1 year 2 year. You need a proper time because it is not a science that you understand. It is also an art, you practice it. It is a feeling, it is an experience. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल समझ जाने से पूरा नहीं होता है. ये विज्ञान नहीं है कि आप उसको समझ लो. ये कला भी है, ये अनुभव भी है. कला भी है और अनुभव भी है. जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इन बातों का अर्थ है, कला को समझा नहीं जाता है, कला को रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है. जैसे राग यमन है. आप राग यमन में समझ लेते हो कि म कोमल होता है, लेकिन क्या समझना पर्याप्त है? आप समझ लिए सारे आरोह अवरोह कैसे होता है, आप समझ लिए कि राग यमन में राग को कैसे उठाते हैं, लेकिन समझना पर्याप्त नहीं होता. उसको गाया जाता है, रियाज किया जाता है. रियाज के बाद समझ में आता है कि राग यमन कैसे गाई जाती है. किताबों में पढ़ लोगे राग यमन तो सीख नहीं जाओगे. उसी तरह समाधि है. कितनी भी किताबें पढ़ लो, समाधि सीख नहीं जाओगे, समाधि समझ में आएगी नहीं. रियाज करनी पड़ेगी, उस पर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा. और फिर अगेन सिर्फ कला ही नहीं है, ये फीलिंग है, ये एहसास है, ये आप महसूस करोगे भीतर. जब सर्दी लगती है, जब विंटर का सीजन होता है, ठंड लगती है. आप किताब में पढ़ लो कि सर्दी के मौसम में, सर्दी के ऋतु में ठंड लगती है. पढ़ लेने से तो समझ में नहीं आएगा पूरी बात. पढ़ लिया आपने, जब तक सर्दियों की ठंड महसूस नहीं होगी, जब तक उसका आभास, उसको आप फील नहीं करोगे. पढ़ लो बहुत ठंड ठंड, प्यास लगी है आपको, खूब पढ़ लो किताब पानी के ऊपर. H2O, सारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वाटर का पढ़ लो. वाटर मतलब H2O, कैसे H2O2 मिलता है, कैसे H2O से वो मॉलिक्यूल बनता है. प्यास बुझ जाएगी क्या? प्यास बुझ जाएगी पढ़ने से? नहीं बुझेगी ना, नहीं बुझेगी प्यास. पानी पीने से प्यास बुझेगी. व्हेन यू ड्रिंक वाटर. Samadhi is such a practical term which just by logical understanding, going through the science, the mystery of science, you cannot understand it. It is like an art. You play the guitar, you play harmonium, you can read how to play piano, but you cannot play if you not do the exercises. So samadhi is exercise. Also, it is a feeling. I was talking when you get thirsty. The knowledge of water doesn't make a sense when you are thirsty. When you are hungry, the knowledge of diet doesn't make any sense. You need food to eat, you need water to drink. So samadhi is that hunger, that thirst. You need a feeling. So samadhi is a practical terminology where your experiences are equally important to understand it, to know it, to contemplate on it. So doesn't take it as a just a theoretical or thought contemplation. It is not thought contemplation. There is a word manan in Hindi or Sanskrit.
And a lot of people think it is a type of contemplation. We do manan. We just contemplate on the things, but it not make any change in your life. Otherwise, nididhyasan not comes with the manan. Nididhyasan is again a term. It is little more than the contemplation, and that is what the meditation is. मनन और निधिध्यासन में फर्क है. हम लोग किसी विषय पे मनन कर सकते हैं, लेकिन मनन पर्याप्त न होगा. समाधि के लिए मनन पर्याप्त नहीं है. समाधि के लिए निधिध्यासन भी जरूरी है. इसीलिए मनन के आगे एक शब्द बना निधिध्यासन. आगे फिर से कहूं, इन शब्दों का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है. इसको इंग्लिश में आप लोग मेडिटेशन कह सकते हो. यू कैन से मेडिटेशन, but it is not the real translation. When I explain the Yoga Sutra, then I will explain all these terminologies. One thing you remember while explaining the Yoga Sutra, while explaining the Raja Yoga, you must go through all the terms or terminology which we use in a sutra. Without understand the terms of Yoga Sutra, you never ever understand the Yoga Sutra or Raja Yoga. So the terminologies, the terms are equally or very, very important. That's why whenever I use any term in Raja Yoga, any term in Yoga Sutra, you need to go to the root of those words, the Sanskrit root of those words, and try to understand it. Otherwise, you will lose the basic structure of Raja Yoga. तो दूसरा मीनिंग मैंने बताया समाधि, और मैंने बताया समाधि कई डायमेंशंस हैं. इसको केवल समझा नहीं जाता, इसको महसूस किया जाता है, इसको रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है. तो दूसरा परिभाषा है युज समाधौ. एक योग की परिभाषा हुई मिलना, जुड़ना. दूसरी योग की परिभाषा हुई समाधि, और आगे हम बताएंगे. पतंजलि ने यही अर्थ लिया, समाधि अर्थ लिया. पहला अर्थ नहीं लिया पतंजलि ने, दूसरा अर्थ को लिया. पहला अर्थ सरल है, सामान्य लोगों के लिए. दूसरा अर्थ राजयोग ने लिया. तीसरा एक और अर्थ है. देयर इज अ थर्ड मीनिंग ऑल्सो. योगा हैज अ थर्ड मीनिंग ऑल्सो. युक्ति. युक्ति. Now this is very important word. In Mahabharata, in a Bhisma Parva, in Mahabharata, Bhishma Pitama has used this word yukti. Yog means yukti. What is yukti? Yukti means upaya, idea, solution. If you are having a lot of problems, then there is a solution. You have an idea. That idea is known as yukti. युक्ति का मतलब होता है उपाय. जब आप बहुत सारे समस्याओं में फंसे होते हैं, जब आपको रास्ते नहीं समझ में आता या चौराहे दोराहे पे खड़े होते हैं, तो आपको उपाय आता है, आपकी आइडिया आती है, आपका बल्ब जलता है, यानी बुद्धि खुलती है. और जब बुद्धि खुलती है तो कोई उपाय आता है. अच्छा, हम ऐसा करके देखते हैं. अच्छा, मैं ये करके देखता हूँ. अच्छा, मैं ये कर लेता हूँ. अच्छा, ये हो सकता है. इसको कहते हैं युक्ति आना. कहते हैं जुक्ति. कोई युक्ति मिली, कोई उपाय मिला. when you feel sometimes when there is no solutions, there is always problems all around you, and you try to find what could be the solutions. Then you lit a bulb of intellect and just you got some idea, and then you feel, oh, I may try this, I should try this. Oh, I can see this in this way. This is what the yukti is. तो महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं कि योग का अर्थ होता है युक्ति. और ये भी गहरे, इसके भी योग के गहरे अर्थ हैं. हम लोग कोई ना कोई योग निकालते हैं. ज्योतिष में आप योग निकालते हुए ज्योतिषाचार्यों से सुने होंगे.
कि ये योग निकालते हैं, ये फलाना फलाना ग्रहों का योग है और उसमें ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, वो युक्ति निकालते हैं, उपाय निकालते हैं। तो योग का अर्थ उपाय भी है। तो राजयोग में हम इन तीनों को समझेंगे, मिलने के अर्थ में भी, उपाय के अर्थ में भी और समाधि के अर्थ में भी। इन तीनों अर्थों में हम राजयोग को समझेंगे। अब पहला प्रश्न मेरे सामने आ रहा है। नाउ यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। आप लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने कि क्या केवल पतंजलि योग सूत्र ही राजयोग है? क्या योग सूत्र को ही राजयोग कहा जाता है? योग सूत्र को भी कहा जाता है। योग सूत्र राजयोग के अंतर्गत आता है, या राजयोग को सूत्रवत पतंजलि ने किया था। एक तो बहुत लोग पतंजलि जब लिखते हैं ना, तो लिखते वक्त पातंजलि कर देते हैं। पातंजलि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये विशेषण है, पातंजलि नहीं है। शब्द है पतंजलि, जो नाम है महर्षि का वो है पतंजलि। ठीक है, जब हम पातंजलि कहते हैं, जैसे राधा का बेटा है तो उसको कह देंगे राधेय, कुंती का बेटा है तो कह देंगे कौंतेय, है ना। तो हम नाम में, नाम के जो वॉवेल्स होते हैं उसमें चेंजेस लाते हैं। राधा से राधेय हो गया, कुंती से कौंतेय हो गया, उसी तरह से पतंजलि से पातंजल्य हो गया। पातंजल, पातंजल नाम नहीं है, ठीक है। पतंजलि ने कोई किताब लिखा तो पातंजल्य प्रणेय इति, ठीक है। कोई पातंजलि द्वारा लिखित कोई पुस्तक है तो लोग पातंजल ऐसे कर देते। पातंजलि नाम, नाम है पतंजलि, नेम इज पतंजलि। सो डोंट wrong pronounce this word. The word is Patanjali. Patanjali is actually accumulated all the sutras. He is not the founder of Raja Yoga. Raja Yoga doesn't mean the Yoga Sutra only. Yoga Sutra, he collected, it is a collection. He compiled, he synchronized. He compiled and synchronized the Yoga Sutras, the formulas. तो पतंजलि ने क्या किया? वो संकलन किया उन सारे सूत्रों को, ताकि राजयोग को समझा जा सके। ठीक है, तो पतंजलि कोई प्रणेता नहीं है राजयोग के, राजयोग के प्रणेता नहीं है वो संकलन करता है। याद रखना इस बात को, वो संकलन करता है। पतंजलि प्रणेता नहीं है, वो उसके फाउंडर नहीं है। उन्होंने यहां वहां से, इधर उधर से, जितने उस वक्त पतंजलि के समय में राजयोग से संबंधित जितना ज्ञान था, उसको उन्होंने चुन चुन करके यहां वहां से ला ला के संकलित किया। उन्होंने जितने प्रकार के राजयोग फैले हुए थे पूरे भारतवर्ष में, पतंजलि ने सबको इकट्ठा किया, चुना, संकलित किया और बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में आपके सामने रखा, बहुत वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने रखा। ये काम था पतंजलि का। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, राजयोग मतलब योग सूत्र नहीं होता। राजयोग डजंट मीन योग सूत्र। यस, पतंजलि कंपाइल्ड इट at his time. The Raja Yoga is spread all over the India in different pockets, and he collected the ideas, he collected the meditations, he collected the principles and synchronized it in a very scientific manner. So he is a compiler, not the founder. एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूं, राजयोग। योग दर्शन तो सब जानते हैं, फिलोसफी ऑफ योगा, बट आई एम टॉकिंग हियर नॉट द फिलोसफी ऑफ योगा, आई एम टॉकिंग हियर राज योगा, द रॉयल पाथ ऑफ योगा। देयर आर मेनी पाथ्स ऑफ योगा, देयर आर सो मेनी। हठ योग, राजयोग के अलावा एक हठ योग भी है। वी हैव मेनी क्लासेस। हम आगे आने वाले समय में हम लोग हठ योग का 7 बजे से क्लास भी चलाते। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करें। क्लासिकल योगा का 7 बजे से क्लास भी होता है। वी ऑल्सो स्टार्टेड अ
class of classical yoga, it is almost based on the Hatha Yoga. You can understand the Hatha Yoga in a great detail, asana, pranayama, and others. Enroll yourself in classical yoga and understand the Hatha practice. So, हठ योग भी है, उसके बारे में भी हम बताएंगे. लय योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है. देयर आर सो मेनी योगस. योग के कई स्वरूप हैं, लेकिन जिस स्वरूप की मैं यहां चर्चा कर रहा हूं वो है राजयोग. इन सभी का राजा, द किंग ऑफ योगा, द रॉयल पाथ ऑफ योगा. इस राजयोग में योग के सारे जितने भी व्यवस्था है, उन सबसे बेहतर, उन सबसे बेस्ट, उन सबसे ज्यादा प्रशस्त. इसीलिए इसको राजा की उपाधि दी गई है. इसको योग का शिरोमणि कहा जाता है. इसको उपाधि मिली है राज की. So this yoga got that facility of as like a king. He is a king of all the yogas. There are varieties of yoga. Hatha yoga, mantra yoga, tantra yoga, bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga, kriya yoga. There's so many. And nowadays in a modern time, hundreds of new type of yoga get patent. अब तो इतने नए नए योग आ गए हैं कि पुराने सारी परिभाषाएं मंद हो गई है. अब योग इस रूप में सामने है कि हमें समझ में नहीं आता है मैं उसे योग कहूं भी या ना कहूं, या सिर्फ ड्रामा कह दूं. Nowadays yoga came in such a way that is not the real yoga. I confuse whether I say them yoga or not. Look like a drama. It is not the actual picture. They are making drama. It is not the real. Yes, there are so many. I don't want to name all those. You all know the different names in last 30-40 years. I don't want to name it. But yes, if we do yoga with the wine, if we do yoga with all our lust, then of course this is not the yoga. अगर हम लोग योग शराब के साथ, बियर योगा, हाँ भाई ऐसे भी नाम है, आप लोग देख लेना, बियर योगा. आप योग को अपनी वासना से जोड़ते हैं, योग को अश्लीलता से जोड़ते हैं, योग को अपने शारीरिक लाभ या संसाधन या वासना से जोड़ते हैं, निश्चित रूप से वह योग कहलाने लायक नहीं है. उसको हम योग निश्चित रूप से नहीं कहेंगे. तो ये भी समझ लेना चाहिए कि क्या योग नहीं है. योग जो हमें समाधि की ओर ले जाए, इसके अतिरिक्त कोई भी योग नहीं है. सीधा एक लाइन का सलूशन मैंने दिया, जो योग आपको समाधि की ओर ले जाए वही योग है. युजुर योगे युज समाधौ, जो युक्तियां, जो उपाय आपको समाधि की ओर ले जाए वही योग है. उसके अलावे जितने भी हैं सब ड्रामा है. नो योगा इन दैट. There is only one thing which leads you to enlightenment, which leads you to samadhi, whether it is asana or pranayama. Yes, asana also leads to samadhi. Yes, pranayama leads to samadhi. Yes, pratyahar leads to samadhi. Whatever practice, whichever practice leads you to samadhi, leads you to spiritual enlightenment, that is what the yoga is. Other all is drama. All are the false practices in the name of yoga.
इसलिए अगर आपको बचना है, आपको समझना है कि कौन सा योग सही दिशा में ले जाता है, तो हमें हमेशा वो रास्ता पकड़िए जो समाधि की ओर ले जाती है। और इसको और समझने के लिए हमें योग सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। योग के लिए जो सबसे सर्वोत्तम पुस्तक है जिसको हम सबने पढ़ना चाहिए, वो है पतंजलि का योग सूत्र। हम लोग यहाँ पर योग सूत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, और वो सब करेंगे जिससे कि महर्षि पतंजलि की बातें हमें समझ में आए, हम समझ पाए कि असली योग क्या है, उस रास्ते पे बढ़ पाए जिसमें महर्षि पतंजलि हमें ले जाना चाहते थे। So here we try to understand what actually Patanjali want or leads us to, where he want to lead us. So without so many confusions, you should study the Yoga Sutra. Without understanding Yoga Sutra, without reading Yoga Sutra, I think you cannot be a yoga or yoga teacher. Even the practitioner, every practitioner of yoga, every teacher of yoga, every scholar of yoga must study the Yoga Sutra. Without Yoga Sutra, your study is not complete. Without understanding the Yoga Sutra, your whole yoga is useless, completely useless. If you not studied the Yoga Sutra, don't say you are practicing yoga. Don't say you are the yoga teacher. So, study, contemplate the Yoga Sutra. इससे ज़्यादा अच्छी किताब न आज तक कभी लिखी गई थी, न कभी लिखी जाएगी, न भूतो न भविष्यते। जो लोग योग सूत्र का अध्ययन नहीं कहें, कृपया अपने आप को योगाचार्य न कहें, अपने आप को योग टीचर न कहें, योग के अभ्यासी न कहें। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, समझें, और आने वाले संडेज में हम आपके इस अध्ययन में, इस मनन में सहयोगी बन सकें, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। मुझे लग रहा है कि somebody want to raise some question, so please you can ask question. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। एक प्रश्न है, रमेश जी हैं, कई सारे साधक आज के इस सेशन में एक साथ ले रहे हैं। रमेश जी को कहूंगा कि आप पूछिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल, राजयोग में सिर्फ मेडिटेशन है या इसमें आसन भी होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि हठ योग मतलब आसन और राजयोग मतलब ध्यान। ऐसा नहीं है। अष्टांग योग की परिभाषा राजयोग में ही दी गई है। आपको मैं बताऊं, हठ योग में कभी भी अष्टांग योग नहीं है। जो लोग कंफ्यूजन लेकर के योगा को अष्टांगा बना दिए हैं और कराते हठ योग है, आपको मैं बताऊं, अष्टांग योग की परिभाषा पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ही दी है। बल्कि हठ योग में षडंग योग और सप्तांग योग की बात की गई है। अगर जो लोग हठ योग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि हठ प्रदीपिका स्वात्मा राम ने षडंग योग 6 अंग है योग के, उसके बारे में कहा गया है। घेरंड ऋषि ने घेरंड संहिता में साप्तांग योग 7 अंग है योग के, ऐसी बात कही है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने ही अष्टांग योग की बात की है, और ये 8 अंग में आसन और प्राणायाम भी निहित है। उन्होंने आसन की परिभाषा भी दी है और उन्होंने आसन के फल भी बताए हैं। 1 2 नहीं 4 सूत्रों में उन्होंने आसन को समझाया है। आने वाले समय में हम समझाएंगे, हम बताएंगे आपको कि पतंजलि ने आसन को किस प्रकार से समझाया है, किस प्रकार से बताया है। और हमको ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आसन की जितनी अच्छी परिभाषा, जितनी अच्छी व्याख्या राजयोग ने की है, योग सूत्र ने की है, वैसी अच्छी परिभाषा तंत्र के या हठ के किसी भी संप्रदाय ने नहीं की है। इसीलिए
आपका प्रश्न उचित है, मैं समझता हूं। राजयोग में निश्चित रूप से आसन है और राजयोग में निश्चित रूप से प्राणायाम है, और उसकी उत्तम परिभाषा भी है। आने वाले समय में हम लोग इसको जानेंगे और पढ़ेंगे। बहुत बहुत So I want to translate this question in English because there are so many people who are here can understand only English. For them, I translate this question and answer. The question was, is asana includes in a Raja Yoga? And I answered, yes, asana is a part of Raja Yoga as the Ashtanga Yoga is. Ashtanga Yoga is first time revealed by Patanjali in his book Yoga Sutra. No other Hatha Yoga text explained the Ashtanga Yoga, the 8 limbs of yoga, only the Patanjali. In a Raja Yoga, we have the practices of asana, we have the practices of pranayama, because by the practice of asana and pranayama, we leads to samadhi. That is what the concept of Ashtanga Yoga is. Yes. So, any other question? कोई और सवाल? एक और सवाल मैं लूंगा आज. कोई और सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं? प्रणाम. आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है. मेरा क्वेश्चन ये है, गुरुजी प्रणाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राणायाम का सही सीरियल क्या है, सही मतलब क्रम क्या है? गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राणायाम, एक बार दोबारा ओके, आई लिटिल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैं समझ पा रहा हूँ प्रश्न को. प्राणायाम का क्रम क्या है, प्राणायाम को कब करना चाहिए? राइट सर. प्राणायाम सदैव षटकर्म के बाद करना चाहिए. प्राणायाम से पूर्व हठ योग के ग्रंथों ने लिखा है कि प्राणायाम से पहले षटकर्म करने चाहिए. षटकर्म करने से आप प्राणायाम सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं. लेकिन ये सारा षटकर्म और प्राणायाम तभी संभव है जब आपने आसन सिद्धि की हुई है. अगर आपकी आसन सिद्धि नहीं हुई है, अगर आसनों को आपने सिद्ध परफेक्ट नहीं किया है, तो आप षटकर्म भी कर लेंगे तो भी प्राणायाम में बैठने में दिक्कत होगी. इसीलिए सबसे पहले हम लोग आसन में सिद्ध होते हैं. आसन में सिद्धि के बाद षटकर्म से शरीर की सफाई करते हैं और प्राणायाम करते हैं. बहुत सारे संप्रदाय में, अभी भी भारत में बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं कि आपको पहले आसन कराए जाते हैं, उसके बाद आप जब पसीने से पसीन हो जाते हैं, जब आप पसीने से भर जाते हैं आसन करके, तब आप स्नान आदि षटकर्म करते हैं. स्नान आदि षटकर्म करने के पश्चात आप प्राणायाम करते हैं. कुछ लोग ये भी क्रम करते हैं कि स्नान आदि करने के पश्चात, षटकर्म करने के पश्चात आसन करते हैं और आसन करने के बाद प्राणायाम करते हैं. तो चाहे षटकर्म को आप पहले रखें या आगे रखें, पर प्राणायाम सदैव आसन के पश्चात ही करना चाहिए. आसन सिद्ध होने पर ही प्राणायाम करने का विधान है. ठीक है, क्लियर है? So now I translate this question in English in a short. What is the sequence of pranayama? I explained the sequence of pranayama comes after the Shatkarma. So Satkarma is the cleansing practices. There are 6 cleansing practices. So first we cleansing our all the motor organs, different parts of the body, and after that we go through the pranayama. But in some traditions, first we do the asana, then we follow the Shatkarma, and at the end we do the pranayama. But also in some tradition, first we practice the Shatkarma, then the asana, and then the pranayama. But pranayama always come after the asana, because asana going to open your all pranic knots. The stretchings of asana open up all those areas of pranic movements where prana could expand it. जब हम लोग आसन करते हैं तो वो सारी ग्रंथियों को खोलते हैं. खिंचाव तनाव से हम उन सभी नाड़ियों को मुक्त करते हैं, उन बंध से, उन ग्रंथियों से, जिससे कि प्राण के आवागमन में
रोक पैदा हो, रुकावट पैदा हो। जब आसन करके हम अपने शरीर की रुकावट को दूर कर लेते हैं, नाड़ियों के ग्रंथियों के बंध को हटा देते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि प्राणों में प्राण का विस्तार करना है। अगर आपकी नाड़ियां ही गुथी हुई है, उलझी हुई हैं, आपके बॉडी में स्टिफनेस है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आपका बॉडी खुला ही नहीं है, आपका शरीर एकाग्र ही नहीं है, आपका शरीर शिथिल ही नहीं है। हम आसन करते हैं तो क्या करते हैं? अपने शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। जब आप भांति भांति के अभ्यास से आप अपने शरीर को स्थिर करते हो, आपके शरीर में स्थिरता ही नहीं है, तो प्राण को कैसे एक्सपैंड करोगे? प्राण का आयाम कैसे अनुभव करोगे? तो प्राण के आयाम को अनुभव करने के लिए, प्राण के एक्सपेंशन को अनुभव करने के लिए शरीर की स्थिरता जरूरी है, शरीर का शैथिल्य होना जरूरी है। अगर काया स्थैर्यम नहीं है, काया में शैथिल्यता नहीं है, तो प्राण रुकेंगे भी नहीं, प्राण फैलेंगे भी नहीं, प्राण का विकास नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आसन को पहले करते हैं और प्राणायाम को उसके पश्चात करते हैं, या आसनों के सिद्ध होने के बाद प्राणायाम की क्रिया आरंभ करते हैं। तो ये क्रम है। ठीक बात है? नमस्कार। चलिए, सो I want to end up this session, but this is not the end. You can say this is the start of Raja Yoga. So today I introduce Raja Yoga, and from today onwards, from every Sunday, we have different practices. It is not only the theoretical discussion, as I said, it is a practice. So we do some practices of Raja Yoga. We do understand the Raja Yoga, different areas of Raja Yoga. हम लोग आज क्लास का अंत नहीं आरंभ कर रहे हैं, और इस आरंभ में बहुत सारे अभ्यास, क्योंकि राजयोग केवल समझ नहीं है बल्कि अभ्यास भी है और अनुभव भी है। तो समझ, अभ्यास और अनुभव, ये तीनों को एक साथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हर संडे को आप हमारे साथ राजयोग के प्रैक्टिसेस को, अभ्यास को, अनुभव को अपने साथ लेकर चलिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के जो चर्चा है, पतंजलि योग सूत्र का जो इंट्रोडक्शन है, अब उस पे हम सभी को मनन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम लोग अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। So today's session, everyone, please contemplate on the things being portrayed by Guruji, and we'll see you next week. Till then, have a great day and a great week. Take care.